Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. Students, today we are going to start a very new chapter of chemistry, that is materials, metals and non-metals. Okay, so it is a very interesting topic, although it is important too with respect to your higher classes also, like in 9th, 10th, 11th, 12th, you will be continuously studying this chapter at a हायर लेवल मीन स्टेप बाय स्टेप इसके लेवल्स क्या हो जाएंगे आपके लिए थोड़े से डिफिकल्ट होते जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन विच क्लास इन विच क्लास यू आर स्टडिंग दिस चैप्टर. सो ये बेस है 8th स्टैंडर्ड. I want you to pay keen attention while watching the video and understand it properly. Okay, metals and non-metals, they play a very important role in chemistry. Okay, like all the reactions and everything is based on particularly metals and elements. Okay, so we will be discussing this throughout this chapter, the reactivity series and all, which are most reactive, which are least reactive, which are metals, which are non-metals, their properties depending upon physical characteristics and all. Also we are going to see certain reactions, how do they react with water, with oxygen and with different substances as well. Okay, so this is a really very important chapter with respect to, with reference to your career as well. Okay, if you are seeking to complete your graduation and all in chemistry or in science, okay, then this will be very helpful, as this is the base of the chapter. Okay, ये basic है और basic आपको पता होना चाहिए. अगर base clear है then it becomes very much easier for you to understand what are metals, what are elements, what are compounds and all. So this is all related to each other. Okay, these are all related to each other. I'll give you a basic introduction about metals and non-metals, then we will move towards its characteristics one by one. In each particular lecture we will be discussing them, okay, thoroughly, so that you can understand and you can have a clear idea about what are the characteristics and how do they act. Okay, so let us start, let us begin. See beta, if we talk about metals and non-metals, it played a very important role in the progress of civilization of man, right? हमें पता है from the beginning, like civilization अगर हम बात करें तो it started over around 1 lakh years ago, है ना. जो human civilization है वो start हुआ था around 1 lakh years ago, but the discovery of metals was around only 5000 years ago, है ना. लगभग 5000 साल पहले ही हमने डिस्कवर किया है, तो ये बहुत लंबा ड्यूरेशन नहीं है, बहुत कम ड्यूरेशन हुआ है हमें जब हमने ये जो पर्टिकुलर मेटल्स हैं इन्हें क्या किया है, फाइंड आउट किया है. और अगर हम रीसेंट डिस्कवरीज की बात करें तो टू ह्यूमन, कार्बन एंड सल्फर, दीज टू non-metals are the one that have been discovered recently. तो हमें बहुत अभी कम वक्त हुआ है जब हमने particularly metals, non-metals का जो है वो डिस्कवरी किया है और उन्हें समझने जानने का तरीका हमने ढूंढा है ना. तो जब हमने पहली बार जब हमने ये किया था तो ये आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, लाइक इन योर हिस्ट्री बुक्स यू हैव स्टडीड अबाउट द स्टोन एज, ब्रोंज एज, आयरन एज, है ना. ये पढ़ा हुआ है आपका, हमने भी पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा. क्यों कहते थे उसे? देखिए, स्टोन एज वॉज रिलेटेबल विद द सिविलाइजेशन एज मैन यूज्ड डिफरेंट स्टोन्स, ओके, फॉर टूल्स, फॉर वेपन्स, है ना. हमें पता है कि हमने जब पहली बार जब व्हील बना था तो वो किससे बना था, हमने हमारे वेपन्स जो बनाए थे वो पहले हमारे स्टोन्स के थे. देन वी फाउंड आउट अबाउट मेटल्स एंड ऑल. तो स्टोन से हमने स्टार्ट किया और इसीलिए उस पर्टिकुलर एरा को हम स्टोन एज कहते हैं, है ना. उसके बाद हमने डिस्कवरी की बहुत सारे एलिमेंट्स की, बहुत सारे मेटल्स की, और देन वी आर कंटिन्यूड दैट डिस्कवरीज, है ना. हमारी जो सर्च है, हमारा जो दैट ईगरनेस है टूवर्ड्स आवर ग्रोथ ऑफ द सिविलाइजेशन इज कंटिन्यूअस, हम कहीं रुके नहीं हैं. ओके, सो आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जहाँ हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर किया. आज भी अगर हम देखें तो ऑन द
बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑफ इंडेक्स अगर हम बात करें तो किसी भी देश के लिए वो कितना वेल्दी है या वो कितना प्रोडक्टिव है या प्रोग्रेसिव है, ये पता करने का सबसे अच्छा तरीका हाउ मच और हाउ मैनी पर्टिकुलर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंट्री इज हैविंग एंड हाउ मच अमाउंट इट इज़ यूजफुल टू इट, कितने अमाउंट में वो प्रोड्यूस कर रही है और कितने उसके यूजेस हैं, इसके बेसिस पर एक कंट्री की प्रोग्रेस जो है वो डिपेंड करती है। आपने कई बार सुना होगा कि देश की जो जब हम बात करते हैं कि ये देश बहुत ही वेल्दी है, तो वो कैसे वेल्दी होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द गोल्ड रिजर्व्स इन इट, कितना सोना उस देश के पास रिजर्व किया हुआ है, इसके बिहाव पर, इसके बेसिस पर हम उस देश को क्या मानते हैं, बहुत ही वेल्दी मानते हैं, है ना। तो हमारा देश तो वैसे भी हम कहते हैं ना सोने की चिड़िया था, है ना, जहाँ इतना सारा गोल्ड था, इतना सारा मेटल था, जो कि बाद में ब्रिटिशर्स के आने के बाद वो हमने बहुत सारे अमाउंट में जो है वो खो दिया। बट उस टाइम पर हमारे पास एक तरीके का हम ये कह सकते हैं, हम वी वर वन ऑफ द वेल्दिएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, ओके। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी हमारे लिए उतनी ही मैटर करती हैं, एंड दे ऑल आर रिलेटेबल टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ओके। सो डिस्कवरी से लेकर, चाहे हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन के एंटर करने से लेकर आज की करंट डिस्कवरीज तक हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है, हम एक्सपैंड करते हुए आए हैं, एंड इन फ्यूचर वी विल बी डूइंग द सेम, वी विल बी कंटिन्यूइंग द सेम, ओके। सो अगर हम मेटल्स की बात करें तो आज की तारीख में जो मेटल्स बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जो या हम कहते हैं बहुत ही कॉमनली हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, इवन योर क्रोमियम, दीज ऑल, जिंक, लेड, ये जो सारे मेटल्स हैं ये हम आज की तारीख में बहुत सारी जगहों पर यूज़ करते हैं। अब हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं उसको मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊँगी, बट इन अ कॉमन वेरी टर्म हमें पता है कि देखिए आयरन जो है हम कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं। अगर हम कॉपर की बात करें, है ना, या हम एल्यूमिनियम की बात करें तो इलेक्ट्रिकल पर्पसेस के लिए वो ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो इट इज़ रिलेटेड विद द ज्वेलरी मेकिंग और डेकोरेटिव पीसेस के लिए यूज़ होता है ना। तो ऐसे बहुत सारे, जिंक है, लेड है, मैग्नीशियम है, क्रोमियम है, ये अलग अलग पर्टिकुलर मेटल्स जो है वो अलग अलग जगह यूज़ होते हैं। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स में भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये जो सल्फर है, ये सब कहाँ अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में, यहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज़ देयर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक एंड अल्टीमेटली इट इज़ हैविंग सर्टन यूज़ ऑल्सो। सो अगर हम सिर्फ बेसिक डेफिनेशन से अगर हम स्टार्ट करें तो हमें पता है कि इन योर 7th स्टैंडर्ड ऑल्सो, इन योर 6th स्टैंडर्ड ऑल्सो यू हैव स्टडीड अबाउट दिस, दैट whatever around us, whatever see, whatever we touch, okay, whatever present in this universe, it is made up of what? It is made up of matter, okay। क्या बोलते हैं हम, वो मैटर से बना है। एंड व्हाट इफ आई वांट टू डिफाइन इट, सो मैटर could be anything that has what? That has mass, okay, and occupies space. सो बेसिक डेफिनेशन मैटर की क्या कहती है कि मैटर क्या है, कोई भी चीज़ आप ले लीजिए जो मास कैरी करती हो, जिसका मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। तो अगर हम हमारे आसपास सभी चीज़ें देख लें, चाहे टेबल, चेयर, पेन, कैमरा, द स्टैंड, बुक्स, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, इट इज़ मेड अप ऑफ व्हाट? मैटर, ओके। नाउ मैटर हैज़ बीन क्लासिफाइड, it has been classified into particularly 3 types, okay। The first one is the elements, the next is the compound, and third one is the mixture। यहाँ तक तो हमें सभी को पता है ना कि मैटर हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। The first one is the elements, second is the compound, and third one is what? Mixture। Now what are elements? See, elements are what? These are the purest form of any
substance. Okay, purest form of any substance known. ओके, तो फिर चाहे वो कोई भी सब्सटेंस हो, है ना, कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन हो, ज़रूरी नहीं कि मैं मेटल ही बोलूँ या नॉन मेटल ही बोलूँ, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में हैं. क्यों? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ व्हाट, सेम काइंड ऑफ एटम. ओके, सेम काइंड ऑफ एटम. एटम क्या है बेटा? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट. एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है. अब सपोज करिए कि आपके पास यहाँ पर ये जो है, ये एक आयरन का आपके पास बार है. ओके, अब ये दिस इज द बिगेस्ट पीस यू हैव ऑफ आयरन. व्हाट इफ आई ब्रेक इट इनटू टू, देन अगेन ब्रेक इट एंड स्टार्ट ब्रेकिंग इट, क्रशिंग इट, हैमरिंग इट. अब मेरे पास इसका सबसे स्मॉलेस्ट पीस बचेगा. So if this particular big piece of this metal iron, okay, अगर मेरे पास ये big piece है metal का, उसके जो characteristic होंगे that will be of same of with respect to the smallest one. जो आप इसका उसको टुकड़े कर करके जो छोटा सा पीस आप लेंगे, है ना, उसके कंपैरेटिवली दोनों के कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे. दोनों में ही कैसा होगा, सेम ही अमाउंट का पर्टिकुलर आयरन प्रेजेंट होगा. सिर्फ पीस का यानी साइज का डिफरेंस है, बाकी ना उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में ना उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई भी किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा. तो एलिमेंट्स आर व्हाट विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम. यानी आप उसको कितने भी स्मॉलेस्ट पीस में अगर आप तोड़ते हैं तो उसका एटम क्या रहेगा, दैट विल बी ऑफ द सेम काइंड. ठीक है, तो अगर हमें एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना है, ओके, तो दैट ऑल्सो गेट क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स, राइट. सो हमारे पास बहुत सारा क्लासिफिकेशन है जिसे हम पढ़ सकते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे. ये पहले आप बेसिक डेफिनेशन समझिए कि एलिमेंट्स आर व्हाट, दीज आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी नोन सब्सटेंस. ओके, एंड दे आर मेड अप ऑफ व्हाट, दे आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स. एंड एटम इज व्हाट, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, अब अगर हम कंपाउंड्स की बात करें, okay, so compounds are what, where two different elements, okay, two different elements they react, two different elements they react to give you a compound, they react to give a compound. Compounds, what do they show? When there are two different elements, they could be of same element also, okay, same or different elements, when they combine together they form a product, and this product is nothing but that what do we call it, we call it as a compound. Okay, so when particular two elements are reacting, they are giving a third product, third type, a different type of one particular substance, okay, that we called as a compound, right. So हमारे पास क्या है, elements है, compounds है, and then we have what, a mixture. Now mixture is what, where two same or different kind of substances or elements simply mix together. Okay, they only simply mix together. So here two either similar or different substances get mixed together. They do not react with each other. We can separate it. यहाँ मिक्सचर में किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं होता है. क्या होता है यहाँ पर, सिर्फ वो सिंपली मिक्स करके रख सकते हैं या रखे जाते हैं. आप चाहे तो उसे फिजिकली बाय केमिकल मेथड्स आप उसे सेपरेट आउट कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ मिक्सचर में क्या है तो सिमिलर सब्सटेंसेस होंगे या सिमिलर एलिमेंट्स होंगे या डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, पर वो क्या होंगे, वो रिएक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, सो एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर. नाउ दिस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट लेवोइसियर. ओके, he was responsible for this classification. Okay, Lavoisier was the scientist who gave the classification of matter, where he classified matter into three types: elements, compounds and mixture. Now as we are studying the chapter metals and non-metals, so elements are further classified. Let's see the classification first.
So elements are further classified into metals, non-metals and metalloids. Okay, so elements are further classified into metals, non-metals and metalloids. Now metals, non-metals and metalloids, these have been seen around in your periodic table. Particularly 118 elements are there total. Okay, among which 90 elements, if we talk about, they are what? They are natural. Okay, and among this 70 elements are metals. Okay, and around approximately 22 elements are what? These are non-metals. ठीक है, तो 118 एलिमेंट्स में से 90 एलिमेंट्स आर नेचुरल, among which 70 elements are metals and approximately 22 elements are what? These are non-metals. So on the basis of their classification, depending upon their characteristic, physical state and different parameters, okay, that we will be studying thoroughly in this chapter. Okay, these have been classified. So metals could be particularly like copper, you can take magnesium, you can take iron, okay, you can take silver, you can take gold, there are many more. Okay, many metals are there. Okay, इन सभी को आपको learn करना है. Okay, and then non-metals. In non-metals we have hydrogen, we have oxygen, we have nitrogen, we have carbon, we have sulfur, we have phosphorus and many more. Okay, particularly if we talk about metalloids. Okay, this is new for you. See, metalloids, either they will have the properties of both metals and non-metals, or neither it will have any property of metal and non-metal. या तो metalloids क्या होंगे, इनमें थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी मेटल नॉन मेटल जैसे होगी, या तो बिल्कुल भी कि दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स में से नहीं आएंगे, उन्हें हम बोलते हैं मेटलॉइड. ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि मेटल नॉन मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स किसी में होंगे किसी में नहीं होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बोरॉन. Okay, boron is a metalloid. It is having certain properties of metals and certain properties, characteristics of non-metal. Okay, there is also germanium. Okay, and antimony is also there. Okay, so बहुत सारे ऐसे हैं मेटलॉइड्स जिनके बारे में आप पढ़ेंगे आगे इन डिटेल. ठीक है, मैं अभी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्लासिफिकेशन कैसा है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे हैव बीन क्लासिफाइड. Right, so this was like the classification. Elements has been classified into metals, non-metals and metalloids. Okay, so जितने reactivity series में आपके metals होंगे, that you need to memorize depending upon their reactivity, कि कौन सा सबसे higher level पर reactive है, कौन सा सबसे least reactive है. ठीक है, इसके हम characteristics भी individually पढ़ेंगे. Okay, one by one we will be studying. तो आज का सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन भी आपको दे रही हूँ. देन वी विल स्टार्ट द फिजिकल स्टेट्स एंड ऑल अमंग दिस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन. एक और बार हम रिव्यू कर लेते हैं. ठीक है, क्या क्या पढ़ा है हमने. दैट लेवोइसियर हैज़ इंट्रोड्यूस्ड what the classification of matter. So matter is what? It is anything that has mass and occupies space. Okay, everything around us is made up of what? Matter. Now matter has been classified into elements, compounds and mixture. So what is element? It is the purest form of any substance known. It is made up of what? Same kind of atom. What is an atom? Atom is the smallest unit of an element. Element का सबसे smallest unit क्या है? Atom. Okay, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने जो सबसे स्मॉलेस्ट पीस लिया होगा, उस स्मॉलेस्ट पीस में भी बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे. किसके? उस पर्टिकुलर स्मॉलेस्ट पीस के. तो आप इससे पता कर सकते हैं कि एटम का साइज बहुत ही छोटा होता है ना. हमारी नेकेड आई से भी हम देख नहीं सकते, और अभी तक ऐसा कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप ही नहीं बना है जो हमें एटम का
स्ट्रक्चर बता सके। हाँ, हम 3D स्ट्रक्चर्स ज़रूर दे सकते हैं, 3D इमेज दे सकते हैं, पर हम पर्टिकुलरली एटम कैसा है ये अभी तक हमने डिस्कवर नहीं किया है। ओके, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट है, उतना माइन्यूट चीज़ों को देखने के लिए हमारे पास माइक्रोस्कोप अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं। तो एटम इज़ व्हाट? इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। ओके, सो if we talk about compounds are what? These are two different elements combined together to form a product, right? On the other hand, mixtures are what? Same or two different kinds of elements, they just simply mix together, they do not react with each other. Further, elements have been classified into metals, non-metals and metalloids. Here metals and non-metals we will be studying thoroughly. Metalloids only simple definition and briefing is given, and I'll take it after completion of this particular characteristics in all. So there are so many metals depending upon reactivity series. That metals are copper, magnesium, iron, gold, silver, chromium, lead, zinc, aluminium, बहुत सारे हैं जिन्हें आपको लर्न करने की ज़रूरत है. So I hope that you have understood the beginning of this chapter, the introduction, what I have given to you. In your next lecture, we will be continuing about the particular characteristics of an element. Okay. Good day, students. Take care.